गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि रियासत कर्नाटक में इस मौके पर असम्बली इंतखाबात का बुखार पूरी तरह शबाब पर आ चुका है। मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार हजरात अपनी पर्चे नामजदगी भी पेश कर रहे हैं, जुलूस भी निकाल रहे हैं, रैलियाँ भी निकाल रहे हैं, इंतखाबी मुहिम भी चला रहे हैं। ऐसे में शहर बेंगलुरु का एक अहम तरीन असम्बली हल्का पुलिकेशी नगर, ये जब से इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ है और उससे पहले भी जो है बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रहा, बिलखुसूस मुस्लिम हल्कों में। वजह उसकी ये थी कि जो है अखंड श्रीनिवास मूर्ति की वजह से या उसके रिश्तेदार की वजह से जो तकलीफ़ केजी हल्ली डीजे हल्ली, जो इसी असम्बली हल्के के जो दो एरिया माने जाते हैं, वहाँ पर जो मुसलमानों के साथ मुस्लिम नौजवानों की जो नाइंसाफ़ी हुई, उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा ज़ेर बहस रहा था यह असम्बली हल्का। इस हल्के से इस एसडीपीआई के मशहूर लीडर भास्कर प्रसाद यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है और इस उम्मीदवार बनाने की वजह से उन्होंने आज पर्चे नामजदगी बड़े पुरजोर अंदाज में और सैकड़ों की तादाद में अपने हामियों के साथ मिलकर के जो है उन्होंने पर्चे नामजदगी भी जमा किया। और इस मौके पर जो है उन्होंने फ्रेजर टाउन से होते हुए पुलिकेशी नगर के मुख्तलिफ इलाकों में जो इस रैली को निकाला और लोगों ने भरपूर अंदाज में उनका जो है सपोर्ट करने की बात भी कही। इस मौके पर उन्होंने एसडीपीआई की जनाब अब्दुल हन्नान साहब, जो कि जो है सर्वगना नगर के असम्बली हल्के के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी शिरकत की और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर एसडीपीआई की क्या मकासद हैं और क्यों जो है पुलकेशी नगर में भास्कर राव साहब को लाया, उनको क्या आवाम सपोर्ट कर सकती है, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने बयान करने की कोशिश की है। आप भी सुने और पूरी तरह सपोर्ट करने की कोशिश करें। ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಪಕ್ಷದ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾಮಪತ್ರ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ BJPಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಫೈಟು. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಘೋಷಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ. ನೇರ ಫೈಟು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ನನಗೂ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸದ್ಯದ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಮತಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, SDPಗೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, SDP ಕೈ ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳಿದೆ? ಏನು ಪ್ರಭಾವನೂ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗಿನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಯಾರು ಸರ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ? ಬಹುಶಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನೋಡಿ ಕೂಡ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ JDS ಆಗಲಿ BJP ಆಗಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀಸು. ಸೊ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಬೇಡ ಸರ್. ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ? ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ SDPI ಅಂತ. ಸೊ SDPI ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತಬಾಂಧವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಸರಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, SDPI ಬೇರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವನು. ಅದೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ BJP ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರೇ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮಾತಾಡೋಂಥ ಮಾತು. ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. KG ಹಳ್ಳಿ DJ ಹಳ್ಳಿ ಗಲಾಟೆನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರೋದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಭಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿಗಳನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ, ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ, ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಪುಲ್ವಾಮಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಾಗ ಯಾರ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನೇ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು BJP ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಟಿರುವಂಥ ರೋಗ ಅಂತ. ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. BR भास्कर प्रसाद साहब को भेजने की पुलिकेशी नगर असम्बली के एक फ़र्द की जिम्मेदारी है। तो आने वाले दिनों में
जो 10 तारीख को इंतखाबात होने वाले हैं उसमें मैं तमाम से एक दिली गुजारिश करता हूँ कि सही मायने में एक सेक्युलर सोच रखने वाला, एक सेक्युलर ख्याल रखने वाला शख्सियत जो है BR भास्कर प्रसाद साहब हमारे मुद्दों पर बात करेंगे। अब तक एहतजाज की शक्ल में असम्बली के बाहर बात करते थे, इंशाअल्लाह एक उम्मीदवार, एक MLA बनकर हमारे मुद्दों के ऊपर असम्बली के अंदर एक टेबल के ऊपर जो है ठोक कर हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे बोलकर एक उम्मीद के साथ हम लोग आज नॉमिनेशन किए हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका कीमती वोट बग़ैर किसी सोच के जो है एक हक़ की गवाही जो वोट रखता है, तो उस हक़ की गवाही को एक सही लीडर को देकर कामयाब करें। लोगों का जो है ये मानना है कि SDPA जहाँ करती है वहाँ से जो है बीजेपी को फ़ायदा पहुँचता है। क्या पुलकेशी नगर में भी ऐसे हालात हैं? सर, अगरचे पिछले बार रही बात पहले तो बीजेपी का, देखिए वो एक ट्रेंड पहले था कि कांग्रेस को वोट नहीं दिए तो बीजेपी आ जाएगी बोलकर, वो कोई भी पार्टी होकर के। मगर इस बार का ट्रेंड कैसा है, इस बार अगरचे कांग्रेस को वोट देंगे तो 100% बीजेपी आएगी। क्यों बोले तो 2018 के इलेक्शंस में पूरे सेक्युलर जहनीत रखने वाले अपना वोट जो है फिस्ताई ताकत को दूर रखना बोलकर जो वोट दिए, तो उसके बाद क्या हुआ आपके सामने रिजल्ट मौजूद है। 12 MLAs कांग्रेस के, फिर 2 MLAs JDS के जाकर आज कर्नाटक में बीजेपी गवर्नमेंट आने का सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। तो इस बार के इलेक्शन में अगरचे कांग्रेस को वोट दिए तो 100% बीजेपी आ जाएगी। और रही बात पुलिकेशी नगर की, अब पिछले 15 साल 20 साल का अगरचे डेटा उठाकर देखेंगे, बीजेपी कहीं पर भी 5 से 8 हज़ार के ऊपर वोट यहाँ पर लेकर नहीं है। तो पुलिकेशी नगर में किसी भी कारण से या किसी भी रीज़न से बीजेपी आने के चांसेस नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अब इलेक्शन की गर्मी शुरू होने के बाद आप लोगों के सामने एक मुसलमानों की प्रेशर ग्रुप कर अपने आप को एक इस्लामिक हुलिया डालकर जो है आपके सामने आएंगे, एक डाइवर्शन की पॉलिटिक्स आप लोगों के सामने करेंगे। इन लोगों को आपको नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ और सिर्फ SDPA को इंशाअल्लाह पुलिकेशी नगर में वोट देना है बोलकर एक अपील आप लोगों से करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है, तो क्या इम्कानात क्या हैं आपके? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अभी नॉमिनेशन फ़ाइल करके आए हैं और नॉमिनेशन आज फाइल किए हैं, लेकिन पार्टी 14 साल से इन इलाक़ों में हम काम कर रहे हैं। हम ज़मीनी सतह पर उतर कर काम कर रहे हैं, हम हवा पे काम नहीं कर रहे। इसी उम्मीद से हम आए हैं कि ज़मीनी सतह से काम किए हैं, लोगों के मसाइल जानते हैं, लोगों के मसाइल के अंदर हम मुदाखलत किए हैं। हर मसले में हम नीचे ज़मीन पे उतर के एहतजाज की शक्ल में और कोई क़ानूनी लड़ाई की शक्ल में कर हम करते रहे। तो लोग कह रहे हैं कि जब आप सड़क पे उठकर आवाज़ उठा रहे हैं तो आप विधानसभा के अंदर जाकर आपको उड़ाना चाहिए। यही लोगों की उम्मीद है, लोगों की ख्वाहिश है कि आप जैसे लोग विधानसभा के अंदर जाना है जहाँ पर क़ानून बनता है, जहाँ पर हर चीज़ की रोकथाम भी हो सकती है और अच्छे हमारे लिए, हमारे इलाके की फलाह बहबूदी के लिए काम, ये लोगों की ख्वाहिश तमन्ना है। अब वो सारे लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। जब भी आसमानी आफतें होती हैं, SDPA हो या उसके वर्कर्स हो जो ज़मीनी सतह से लोगों की खिदमत करते हैं, एक कसीर तादाद में जो है SDPA का मजमा नज़र आता है। इलेक्शन के दौरान वो मजमा क्यों नज़र नहीं आता? देखिए, इलेक्शन के दौर में ये सारी जितने भी पार्टियाँ हैं ये रुश्वत की पार्टियाँ हैं। पहले टिकट ही रुश्वत दे के आते हैं, तो आके करीब फुसलाते हैं लोगों को, आके वो पैसों से ख़रीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब वो जान चुके हैं, बहुत साल 60 साल से ये चलता रहा और पिछले 10 साल से हमारे इस इलाके के अंदर क्या तरक्की हुई, क्या फलाह बहबूदी का काम हुआ नहीं मालूम। खून देने के लिए, उनको राशन देने के लिए, उनकी कानूनी लड़ाई के लिए, उनके कोई थाने का पुलिस का मामला हो तो उसके लिए, हर मसाइल में हम लोग जो जाकर हम नीचे की सतह पे काम करें, चाहे वो ज़लज़ला हो, सैलाब हो, कुछ भी हो, जो हम काम करें। अब उन लोगों को पता एहसास हो चुका है कि यही हकीकी लोग हैं, यही सच्चे लोग हैं जो हमारे हर दुख दर्द को समझने वाले। तो इस उम्मीद से वही कह रहे हैं कि उन्हीं की ख्वाहिश है कि आप ही लोग आना चाहिए। तो इस उम्मीद से कि हमारा जो काम किए हैं और उसकी बुनियाद पर आप लोगों की ताउन के साथ, लोगों के मशवरों के साथ, हर वोटर्स के मोहब्बत और प्यार और खुलूस और उनके वोट की वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि हम अच्छी तादाद में हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह।